We will now discuss the cultural basis, that is the socio-cultural shaping of your behavior. Concept of culture. बायोलॉजिकल फैक्टर्स, सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्टर्स पूरे ह्यूमन बिहेवियर को नहीं एक्सप्लेन कर सकते, ठीक है. Human nature has evolved through an interplay of biological and cultural forces. These forces have made us similar in many ways and different in others. Culture includes behavioral products of others who preceded us. It indicates both substantial and abstract particulars that have prior existence in one form or another. It contains values that will be expressed and language in which to express them. It contains a way of life that will be followed by most of us who grow in that context. Culture provides meaning by creating significant categories like social practices, example marriage, and the roles that a person possesses, as well as values, beliefs, and premises. All this is included in culture. Society and culture exert many real influences on human behavior, and it allows us to categorize and explain many important differences in human behavior. That why two people are different, even if they are twins, why they are still different. अब इसमें एक टॉपिक आता है इनकल्चरेशन का. एनकल्चरेशन refers to all learning that takes place without direct deliberate teaching. यानी कि अपने कल्चर से वो सारी चीज़ें जो आप सीखते हो लेकिन आपको प्रॉपरली बैठकर सिखाई नहीं गई हैं, आपने बस सीख ली ऑटोमेटिकली, वो आपकी इनकल्चरेशन में आती हैं. We learn certain ideas, concepts, and values simply because of their availability in our cultural context. Such concepts are transmitted both directly and indirectly and are learned very well because they are an integral part of the life of a cultural group and are hence never questioned. The key element of enculturation is learning by observation. सो यूजली यहाँ पर जो आप चीज़ें लर्न कर रहे हो वो आप ऑब्जर्वेशन से कर रहे हो. Although the effects of enculturation are obvious, people are generally not aware of these effects. They are also generally not aware of what is not available in the society to be learned. यूजली जो चीज़ें हमारे कल्चर में नहीं होती हमें पता ही नहीं होता है उनके बारे में. सो हमें पता भी नहीं होता है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी ने हमें नहीं सिखाई. The next concept here is socialization. Socialization is a process by which individuals acquire knowledge, skills, and dispositions which enable them to participate as effective members of groups and society. It is a process that continues over the entire lifespan and through which one learns and develops ways of effective functioning at any stage of development. The process of socialization is not always a smooth transition. ज़रूरी नहीं आपके लिए ईजी हो socialization, ठीक है. कभी कभी उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकती हैं. ऐसी सिचुएशंस में not only some responses are punished but some are also blocked by the behavior of others in effective ways. At the same time, several responses need to be avoided so that they acquire greater strength. Thus, reward and punishment serve as a basic mean for achieving the goals of socialization. In the sense, all socialization seems to involve efforts by others to control behavior. Now, what is the difference between socialization and enculturation? एनकल्चरेशन में आप चीज़ें अपने आप सीख रहे हो, आपको स्पेसिफिकली सिखाई नहीं गई हैं. यहाँ पर सोशलाइजेशन में स्पेसिफिकली ये वो चीज़ें हैं जिनके लिए आपको रीइंफोर्स करा जाता है थ्रू रिवॉर्ड्स या अप्रिसिएशन या एक्सेप्टेंस, या फिर पनिश करा जाता है इन सर्टेन वे सो दैट यू डू नॉट रिपीट दोज थिंग्स. सो दोज थिंग्स दैट आर फॉर विच डेलिबरेट एफर्ट्स हैव बीन डन for you to learn them is socialization. Due to the processes of enculturation and socialization, we find behavioral similarities within societies and behavioral differences across societies. See, socialization और enculturation are the reason कि दो सेम कल्चर के लोगों में कुछ सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं
और दो अलग कल्चर के लोगों में काफ़ी सारे डिफरेंसेस भी मिलते हैं. Both processes involve learning from other people. In case of socialization, the learning involves deliberate teaching. In case of enculturation, teaching is not necessary for learning to take place. अब socializing agents क्या क्या हैं? A number of people who relate to us possess power over us. बहुत सारे लोग जिनके साथ हम कांस्टेंट टच में रहते हैं उनमें पावर होती है कि वो हमें सोशलाइज कर सकें. ऐसे लोगों को हम सोशलाइजिंग एजेंट कहते हैं या सोशलाइजेशन एजेंट कहते हैं. कुछ इम्पॉर्टेंट सोशलाइजेशन एजेंट्स हैं. फर्स्टली ऑब्वियसली पेरेंट्स हमारे बहुत सारे बिहेवियर्स को इनकरेज करते हैं और डिस्करेज करते हैं एंड कुछ चीज़ों को रिवॉर्ड करते हैं, कुछ चीज़ों को पनिश करते हैं. बिकॉज ऑफ दिस दे बिकम एन इम्पॉर्टेंट एजेंट इन सोशलाइजेशन. साथ ही साथ ग्रैंड पेरेंट्स से कितनी प्रॉक्सिमिटी है, सोशल रिलेशनशिप्स में कितना नेटवर्क है, इन सब चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है आपके सोशलाइजेशन में. देन नेक्स्ट इज स्कूल. Children learn not only cognitive skills from school but also many social skills. Cognitive skills में आपकी रीडिंग, राइटिंग, डूइंग, मैथमेटिक्स आती हैं जो आप स्कूल से सीखते हो. एंड सोशल स्किल्स में आप सीखते हो कि बड़ों के साथ कैसे बिहेव करना है, अपने साथ वालों के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे रोल्स को एक्सेप्ट करना है, कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करनी है, व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड अ लॉट ऑफ सच थिंग्स. They also learn and internalize the norms and rules of society. Several other positive qualities like self-initiative, self-control, responsibility, and creativity are also encouraged in schools. Next is peer groups. Qualities like sharing, trust, mutual understanding, role acceptance, and fulfillment develop in interaction with peers. We also learn to assert our own point of view एंड एक्सेप्ट एंड अडाप्ट टू दोज ऑफ अदर्स. यानी कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना सीखते हैं और दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी एक्सेप्ट या उसके साथ अडाप्ट करना सीखते हैं. डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी इज ग्रेटली फैसिलिटेटेड बाय द पीयर ग्रुप. नेक्स्ट इज मीडिया इन्फ्लुएंसेस. थ्रू टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स, बुक्स एंड सिनेमा, adolescents and young adults often derive their models, पर्टिकुलरली फ्रॉम टेलीविजन एंड सिनेमा. सो हम कई सारी चीज़ें मूवीज़ वगैरह से भी सीखते हैं. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें. अगर आप कोई पर्टिकुलर से पैट्रियोटिक मूवी देख रहे हो तो आप उससे चीज़ें सीखते हो, या आप कोई लॉ से रिलेटेड मूवी देख रहे हो तो आप उससे लॉ के बारे में सीखते हो. हाउएवर मीडिया इन्फ्लुएंसेस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है. कई बार बहुत ज़्यादा अगर वायलेंस शो हो रहा है टेलीविज़न पे, इट बिकम्स अ मेजर इशू ऑफ डिस्कशन सिंस स्टडीज़ इंडिकेट दैट ऑब्जर्विंग वायलेंस ऑन टेलीविजन enhances aggressive behavior among children. Next concept is of acculturation. Acculturation refers to cultural and psychological changes resulting from contact with other cultures. अब मान लीजिए आप इंडियन कल्चर के हो और आप सडनली यूएस शिफ्ट हो जाते हो. नाउ यू हैव टू अडेप्ट इन दैट कल्चर. These changes, these psychological and cultural changes that will then happen once you come in contact with other culture is known as acculturation. Contact may be direct, that is when one moves and settles in a new culture, or indirect, that is through media or other means. ये वॉलंटरी भी हो सकता है कि आप अपनी मर्ज़ी से अब्रॉड चले गए हायर स्टडीज़ के लिए, ट्रेनिंग के लिए, जॉब के लिए, या काम के लिए, बिजनेस के लिए. या फिर इनवॉलंटरी भी हो सकता है कि क्योंकि जैसे ब्रिटिश ने आप लोगों पर आकर के रूल किया था, हम लोगों पे आके रूल किया था, तो कॉलोनियल एक्सपीरियंस की वजह से, इन्वेजन की वजह से, पॉलिटिकल रेफ्यूज की वजह से भी इनवॉलंटरी मेथड भी हो सकता है. Acculturation can take place at any time in one's life. Whenever it occurs, it requires relearning of norms, values, dispositions, and patterns of behaviors. Changes in these aspects require resocialization. कुछ लोगों के लिए बहुत ईजी होता है नई चीज़ों को लर्न करना, एंड अगर लर्निंग सक्सेसफुल हो गई तो यूजुअली शिफ्ट इन बिहेवियर बहुत ईजीली हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रुप
दैट ब्रिंग्स इन अकल्चरेशन। ऐसी सिचुएशन में ट्रांजिशन टू अ न्यू लाइफ काफ़ी स्मूथ हो जाता है आपका ट्रांजिशन एंड प्रॉब्लम्स नहीं होती। ऑन द अदर हैंड बहुत सारे लोग होते हैं या बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ लोगों को डिफ़िकल्टी आती है काफ़ी इन डीलिंग विद द न्यू डिमांड्स ऑफ चेंज। उनके लिए चेंज बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एंड दे आर थ्रोन इनटू अ स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। दिस सिचुएशन इज़ रिलेटिवली पेनफुल एज इट लीड्स टू एक्सपीरियंस ऑफ स्ट्रेस and other behavioral difficulties by acculturating individuals and groups. Changes due to acculturation may be examined at subjective and objective levels. Subjective level पे usually changes reflect होंगे आपके attitude में towards the change, यानी कि आप change को positively ले रहे हो या negatively ले रहे हो, आपका क्या attitude, क्या mental set है about that change. They are referred to as acculturation attitudes. ऑब्जेक्टिव लेवल पे अगर देखा जाए तो चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे आपके डे टू डे बिहेवियर्स और एक्टिविटीज़ में, इनको हम अकल्चरेशन स्ट्रैटेजीज बोलते हैं। जॉन बेरी ही इज़ वेरी वेल नोन फॉर हिज स्टडीज़ ऑन साइकोलॉजिकल अकल्चरेशन। ही आर्ग्यूज़ कि दो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ होते हैं जो हमें कंसिडर करने चाहिए इन द टॉपिक ऑफ अकल्चरेशन। And all acculturating individuals and groups, they face these two issues in culture contact situations. पहला इशू है to the degree to which there is desire to maintain one's culture and identity, यानी कि पहला है कि आप अपना कल्चर और अपनी आइडेंटिटी को कितना या किस डिग्री में मेंटेन करना चाहते हो, एंड दूसरा है कि आप किस डिग्री में, टू द डिग्री टू विच देयर इज़ अ डिज़ायर टू इंगेज इन डेली इंटरेक्शंस विद मेंबर्स ऑफ अदर कल्चरल ग्रुप, यानी कि कितनी डिज़ायर आप में है कि आप बाहर के लोगों से, यानी कि दूसरे कल्चर के लोगों के साथ इंगेज करो, उसकी कितनी डिज़ायर है। सो आप अपने कल्चर को कितना मेंटेन करना चाह रहे हो और आप दूसरों के कल्चर में कितना इंगेज होना चाह रहे हो, दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब इन दो इश्यूज़ के बेसिस पर चार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं अकल्चरेटिव स्ट्रैटेजीज के। So the first strategy is integration. It refers to an attitude in which there is an interest in both, यानी कि आपको दोनों ही चीज़ों में इंटरेस्ट है। आप अपने ओरिजिनल कल्चर और आइडेंटिटी को भी मेंटेन करना चाहते हो और आप बाहर के कल्चर, यानी कि जो फॉरेन कल्चर ग्रुप है उसके साथ भी डेली बेसिस पे इंटरेक्ट करना चाहते हो। ऐसे केस में यूजुअली आपकी कल्चरल इंटेग्रिटी बनी रहेगी, मेंटेन रहेगी और आप दूसरे कल्चरल ग्रुप के साथ भी इंटरेक्ट कर पाओगे। सेकेंड इज एसिमिलेशन. It refers to an attitude in which people do not wish to maintain their cultural identity and they move to become an integral part of the other culture. यानी कि इसमें मेनली क्या है कि आप अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को छोड़कर दूसरे कल्चर में कंप्लीटली इंडल्ज होना चाहते हो। ऐसे केस में आप अपनी कल्चर और अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को लूज़ कर देते हो। थर्ड इज़ सेपरेशन. इसका मतलब है कि आप अपने ओरिजिनल कल्चर पे इतनी ज़्यादा वैल्यू प्लेस करते हो या इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको उसमें है, अपने ओरिजिनल कल्चर पे स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि आप नए कल्चर ग्रुप से इंटरैक्शंस को अवॉइड करोगे. इन दिस केस पीपल ऑफन टेंड टू ग्लोरीफाई देयर कल्चरल आइडेंटिटी. ऐसे में आप अपना मतलब आप हमेशा बात करते रहोगे कि हमारे देश में तो चीज़ें ऐसे होती थी, यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पे लोग कितनी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, हम लोग तो अपने माता पिता के लिए ये करते थे. सो यूजुअली दूसरे कल्चर को आप नीचा दिखाने के लिए अपने कल्चर को बहुत ग्लोरीफाई करते हो. एंड द लास्ट इज मार्जिनलाइजेशन. इट रिफर्स टू एन एटीट्यूड इन विच there is little possibility or interest in one's cultural maintenance and little interest in having relations with other cultural groups. यानी कि आपको अपने कल्चर को भी मेंटेन करने में आज सच कोई इंटरेस्ट नहीं है और दूसरे कल्चर में भी इंडल्ज होने का या इंगेज होने में आज सच कोई इंटरेस्ट नहीं है.
ऐसे केस में आप बहुत अनडिसाइडेड से रहते हो एंड कि आप क्या करना चाहिए, एंड यू कंटिन्यू टू स्टे विद अ ग्रेट डील ऑफ स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है. With this, we are done with this chapter of yours. Thank you. I hope everything was clear to you and you were able to understand all the concepts. Thank you and have a very nice day.